The election fever has started to catch up with less than a week remaining for the first phase of voting for the 2019 Lok Sabha election. The political parties have started a whirlwind campaigning across the country. The candidates are going door to door and urging people to vote for them. The party cadres are hitting the streets, conducting rallies and campaign meetings, etc. But amidst the politically heated campaigning, where do the common masses stand? What are their issues and what do they want their politicians to talk about? And most importantly, what is the mood of the nation? We bring you all of this through our special series for the election 2019. Every day we will give you glimpses from each state, bringing you ground reactions and trying to assess the mood of the people. Today we will talk about Maharashtra. The state of Maharashtra, the state at the western part of India, holds immense importance as it houses India's economic capital, Mumbai. Maharashtra has a rich cultural and political legacy. The state gave the nation freedom fighters like Lokmanya Tilak and even the father of the Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar. Numerically, the state has second most importance as it houses 48 seats, second largest after Uttar Pradesh. In 2014, Bharatiya Janata Party won 23 seats with a vote share of 27.30%. Indian National Congress won 2 seats with a vote share of 18.10%. Nationalist Congress Party headed by Sharad Pawar won 4 seats with a vote share of 16%. Shiv Sena, which is headed by Uddhav Thackeray now, won 18 seats with a vote share of 20.60%. Swabhimani Paksh of Raju Shetty won only 1 seat with a vote share of 2.30%. If you look at the electorate, gender ratio is 4,57,01,877 are male, while 4,16,25,950 are females, while 2,083 identify themselves as others and third genders. Now, if you look at the composition of the population on the basis of religion, Hindus account for 79.83%, Muslims 11.54%, Christians are 0.96%, Sikhs account for 0.20%, Buddhists form 5.81%, while Jains are 1.25%. Now, after years of dogfighting and mudslinging, the Shiv Sena BJP, who had turned foe, joined hands again and are fighting election together. BJP is contesting on 25 seats, while Shiv Sena is contesting on 23 seats, while Congress and CP are contesting on 26 seats and 22 seats respectively. SP-BSP are contesting on 4 seats and 44 seats respectively. The Vanchit Bahujan Aghadi, formed by Prakash Ambedkar and AIMIM's Asaduddin Owaisi, is contesting on 48 seats. Now let us have a look at the major candidates in Maharashtra. Urmila Matondkar, a celebrity, is contesting from Mumbai North on Congress ticket. Supriya Sule, the daughter of Sharad Pawar, NCP patron, is contesting from Baramati on NCP ticket. Nitin Gadkari, the Union Minister, is contesting from his traditional seat Nagpur. Prakash Ambedkar of Bharip Bahujan Sangh is contesting from Solapur against Sushil Kumar Shinde. Priya Dutt is contesting from Mumbai North Central on Congress ticket. Ashok Chavan, the former Chief Minister of Maharashtra, is contesting from Nanded. Well, in last 5 years, the state has seen a major drought in the Vidarbha region. The farmers' crisis has been severe in the state. With all of this, political parties fighting among each other, what impact it has had on the electorate, let us see in this mood report. सर ये तो हमारे लिए क्वेश्चन भी नहीं है। मोदी जी, अब की बार फिर मोदी सरकार। सर गलत क्या हुआ है? इस बार कोई घोटाला नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, अच्छा गवर्नेंस हो रहा है। अब सारी चीज़ें तो 5 साल में नहीं सुधर जाएगी। 120 करोड़ का देश है, तो ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और GST आ गया है, डिमोनेटाइजेशन हो गया है, राइट। सारी इकोनॉमी जो है वो फॉर्मलाइज हो रही है, विच इज़ गुड फॉर बिजनेस। तो राहुल गांधी सर एक बार वो राफेल मामले में एक फिगर बता दे तो उनको वोट दे देंगे। उनके हर इंटरव्यू में अलग फिगर होता है राफेल के लिए। तो नेशनलिज्म का मुद्दा रहेगा, लेकिन मोदी जी को अगर जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसमें एक तो स्टेबिलिटी दिया उन्होंने पॉलिसी के मामले में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आया है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बहुत सारे छोटे छोटे हमारे जैसे स्टार्टअप है जिनको नया मौका मिला है। ये 5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे जो हम आज यहाँ कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है जो लोन्स देती है। ये मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर हमें इतना सपोर्ट मिलता है कि हम आज एक बिज़नेस खड़ा कर पा रहे हैं। ये 5 साल पहले पॉसिबल ही नहीं था। तो इस वजह से गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज़ है, इन्वायरमेंट अच्छा है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए वी वुड लाइक टू वोट मोदी जी। इस बार अब की बार फिर मोदी सरकार। क्यों मोदी क्यों? मोदी जी ने काम किया है, काफ़ी काम किया है। अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया, GST लाया, फिर नोटबंदी लाई। ये सब अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए है। आज जो इंडिया की इज्जत है पूरे वर्ल्ड में,
वो अब बनी है। आप देखो हर कंट्री अब इंडिया को मान रही है कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ पावर सेक्टर, पावर कंट्री। सो हमने अभी देखा पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ उस पर भी, तो ये सक्षम सरकार ही लेके आ सकती है और ये मोदी जी ने दिया है। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान का वो एयर स्ट्राइक करके, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके मोदी सरकार जो है उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, राजनीतिकरण देखिए, राजनीतिकरण करना होता तो कांग्रेस सरकार के पास भी काफ़ी मौके थे ये राजनीतिकरण करना, बट एक जो सक्षम सरकार है वो मोदी सरकार ने दिया है और लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है कि आज कोई भी आतंकवाद की कोई घटना नहीं है, पूरे सालों में कोई विस्फोट नहीं होते हैं। आज मुंबई सेफ जो महसूस कर रहा है ये मोदी सरकार की ही देन है। तो आप मोदी सरकार के 10 में से 10 में 10 मोदी सरकार को कम देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। पूरी भरोसा है, उन्होंने 5 सालों में जो चेंज किया है, अभी इतने सालों का जो कांग्रेस सरकार ने किया था और पिछली सरकारों ने किया है उसका भरपाई करने में 5 साल काफ़ी कम समय है और मौका देंगे एक, फिर उनके बाद देखेंगे कि उन 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, फिर आगे सोचेंगे, लेकिन इस बार तो मोदी सरकार ही। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को ला दिया राजनीति में। देखिए, प्रियंका गांधी को लाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एक फेस लेके आना चाहते हैं बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन साझा सरकार बनाने उन्होंने सारे दलों को मिलाया है, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी सरकार फिर से आएगी। क्या लगता नहीं कि नेशनलिज्म का मुद्दा एक चुनाव में हावी रहेगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा? देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा तो हावी होना भी चाहिए क्योंकि जो इन्होंने किया है, हम लोगों का मॉरल, जो पब्लिक का मॉरल है, काफ़ी ऊपर गया है और आज पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज गया है कि आज इंडिया पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे और कोई दूसरा देश। 2019 मोदी सरकार। 2019 मोदी सरकार। I think Modi is doing fairly good. So Modi, I think he should be able to continue. क्यों मोदी क्यों राहुल गांधी क्यों कांग्रेस क्यों? He's done, उसने कुछ अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे काम किए। So I think कुछ जो कमी रहेगी, I think he will correct it again अगर कुछ है तो। I think he deserves a second chance. He's done all the hard work. अच्छा काम किया है, मेहनत किया है। So I think he's given good direction overall. So I think that will only help in his second term. तो इस बार वोट डालने जाएंगे तो आपके सामने जो मेन मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर वोट डाला जाएगा? I think a stable government. Stable government is in a better position to take view and take actions and take a sort of a policy decision. प्रियंका गांधी का पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ है तो क्या प्रियंका गांधी कुछ इम्पैक्ट करेंगी? I don't think so much. ज़्यादा नहीं. लगता नहीं कि इस इलेक्शन में नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो हावी रहेगा? हावी तो रहना ही चाहिए. At the end of the nationalism is important in a country like India when we are divided by so much things. The nationalism is the only thing which keeps us united. So that has to be. पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक हुआ है It's good. कांग्रेस बोल रही है कि गवर्नमेंट उसका See, they will keep on fighting. At the end of the day, what every individual think that is important, and I think most of the people think that it has been good. इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया है, अप्रैल और मई महीने में चुनाव होने हैं। बिल्कुल जी। क्या आप इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी। क्यों मोदी, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? जो डेवलपमेंट मुंबई में पिछले 4-4.5 साल में हुआ है वो पिछले 30 साल में कभी देखने को नहीं मिला। इस करके मोदी ही आना चाहिए वापस। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी नहीं। आप जब वोट डालने जाओगे तो मेन जो है मुद्दे क्या रहेंगे? डेवलपमेंट मुंबई में जो डेवलपमेंट चाहिए, जो पिछले 30 साल से एक्सपेक्टेड था, वो पिछले 4 साल में 4.5 साल में हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी ही आना चाहिए। और जब यहाँ की विधानसभा इलेक्शन हो तो अगेन बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि अपने को मुंबई में डेवलपमेंट चाहिए। हाल ही में इलेक्शन हुआ, शिवसेना बोल रही थी हम इस बार अलग चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से अलग लड़ेंगे, लेकिन अलायंस कर लिए। हाँ, तो कर लिए ना। वो तो छोटे भाई बड़े भाई का शुरू से पिछले 25 साल से वो लोग साथ में हैं, साथ में थे और साथ में रहेंगे। तो मोदी गवर्नमेंट को आप जो 5 साल का जो उन्होंने रूल किया उसको कितना मार्क्स देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 9। हाँ जी। तो जो एक नंबर जो काटा है वो इसके लिए काटा है, कश्मीर पे एक्शन बहुत लेट किया है इसके लिए। अच्छा,
अदरवाइज 10 में से 10 मिलना चाहिए था। पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुआ, उस पर क्या? वो तो मार्वलस था। तो कांग्रेस बोल रही है कि इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है। वो तो उनकी गलती है, मिस्टेक है उनकी। उन्होंने अपना जो वोट शेयरिंग था उस वजह से और कम कर लिया होगा। व्हाट आई एक्सपेक्ट कि पहले मैं भी कांग्रेस ही था, लेकिन ये जो प्रोग्रेस बॉम्बे में देखी, जो मोदी जी का काम देखा, तो मैंने भी पाला बदल लिया। प्रियंका के आने से क्या कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क। जो किया है देश के लिए डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। प्लस फ़िलहाल जो रीसेंट रिएक्शन है पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिज्म के ऊपर, वो काफ़ी अच्छा है। जो पुराने जो प्रधानमंत्री थे तब उतना कुछ था नहीं, मतलब टेररिज्म एक्चुअली ग्रो कर रहा था और रोकने के लिए कुछ नहीं था। बस ठीक है, प्रमोट हो रही है चीज़ें, वो शांत हो जाती है, हल्ला बोले फिर शांत हो गया। तो यहाँ इस बार बेसिकली एक रिएक्शन है और जो यूथ है वो काफ़ी खुश है इस चीज़ से। यूथ के लिए क्या किया है? कौन से ऐसे मतलब मोदी सरकार के जो काम है जो आपको पसंद आए? हर एक चीज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ले लो आप मुंबई में देख लो, आप मेट्रो से लेके आप हर एक चीज़ आप देख लो, डेवलपमेंट बेसिकली यूथ के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है कि जो यूथ है वो बेसिकली मोदी जी से काफ़ी मतलब प्रेरणा ले रहा है। एंड सेकेंडली आई फील कि दे विल सपोर्ट मोदी दिस टाइम, बहुमत से आएंगे मतलब। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? नहीं है, थोड़ा अभी देखो कैसा है मालूम, हम लोग स्वतंत्र से लेके हम लोग यहाँ से अभी तक आ रहे हैं अपन, मालूम है ना। कश्मीर का जो क्वेश्चंस है जो अपने केस में, तो मालूम है कभी तक क्या हो रहा है उधर। अभी ठीक है, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक 2 बार किया है उन्होंने, तो मेरे को लगता है कि सही है ये जो कर रहे हो। मेन मुद्दे फिर कौन से होंगे इस बार चुनाव में? नहीं भाई, इतना तो हम लोग को इतना आइडिया नहीं है राजकारण का, लेकिन जो अभी है मोदी को वोट किस पॉइंट पे देंगे? नहीं, जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जो मतलब उनका जो डिसीजन लेने का जो ये है उनका, तो वो मेरे को अच्छा लग रहा है। क्या इस बार प्रधानमंत्री? मतलब मेरे हिसाब से तो मोदी जी आएंगे, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से अभी ये 4-5 सालों में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो ड्रास्टिकल चेंजेस है और बहुत अच्छे चेंजेस लाए हैं। तो इस हिसाब से मोदी आने चाहिए। राहुल क्यों नहीं? सोशल मीडिया का भी यूज़ करके जो भी चीज़ें शेयर हो रही है, उसके हिसाब से मतलब जो चीज़ पहले नहीं हुई थी वो सब अभी हो रहे। मैं लिस्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार अच्छी कर रही है, क्या मोदी सरकार बेसिकली। सरकार के कौन से काम को जो आपको पसंद है? जैसे कि डिफेंस में हो, नोटबंदी हुआ था, जीएसटी लाए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि मतलब बोल भी नहीं सकते, कि काउंट भी नहीं बता सकते ऐसे। तो जो भी चीज़ें है वो अच्छी की है, इसकी वजह से मोदी ही लग रहा है। वोट डालने जाएंगे तो आपके सामने कौन सा सभी चीज़ों पे मतलब सब कुछ होगा। जैसे कि अभी नेक्स्ट 5 सालों में अपने को लगना है कि भाई कौन सा सरकार आना चाहिए। मोदी, अभी आग बंद करेंगे तो मोदी ही दिख रहे हैं, क्योंकि उनके टक्कर का कोई दूसरा कोई दिख नहीं रहा है आसपास भी। हाँ, अच्छा था। ये डिफेंस ने किया है और डिफेंस को एक बैकबोन चाहिए कि अपनी सरकार अपने साथ है कि नहीं, जो कि बीजेपी सरकार ने किया है। कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसे अटैक्स हुए थे इंडिया पे, लेकिन डिफेंस ने कुछ किया नहीं था वो टाइम पे ज़्यादा, लेकिन ये टाइम हुआ है। तो क्योंकि अपना सरकार ये टाइम पे ज़्यादा स्ट्रांग है। आई वुड बी लाइक टू वोट फॉर द मोदी, बिकॉज उन्होंने इस 5 साल में डेवलपमेंट किया है और करप्शन भी देखो वो भी, और करंटली वो आर्मी को भी उन्होंने अच्छी हेल्प की है। तो सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स आई लव टू वोट मोदी, बिकॉज इन करंट प्रीवियसली इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट आगे जाके और भी इंडिया डेवलप होगा। और करेंसी भी जो कि बाहर इतने 24 कंट्रीज उन्होंने विजिट किया है, तो माइट बी 90% people are voting for the Modi. That is my words to you. Why not Rahul Gandhi? I am little unconfident from, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अच्छे नहीं है, बट वो भी कर रहे हैं काम फॉर द फैन फॉलोइंग, और जो क्रेज है वो करंटली इंडिया में मोदी का ही है। जो वोट डालने जाएंगे तो आपके सामने मेन मुद्दा क्या होगा? डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट, और इंडिया को आगे लेके जाना है। वो आप कहाँ पे भी मतलब
इन बिजनेस हुआ, किसानों के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको जो मैक्सिमम उनको घर मिलने चाहिए, फूड मिलना चाहिए, उनको जॉब। सबसे बेस्ट है कि आज इंडिया में रिसेशन बहुत है, जॉब मिलना चाहिए। तो ये जो बहुत चीज़ें ये होना चाहिए। अगर कौन सा भी नेता, मोदी करे या राहुल गांधी करे और XYZ कौन सा भी नेता करे, बट वो डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो फॉर द आर्मी, उन्होंने आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है। फॉर इंडियन आर्मी करंटली, हम तो इसके पहले पाकिस्तान में जाके घुस के नहीं मारते थे, आज करंटली हम मार रहे हैं उनको, और उनको डर लग रहा है इंडियन आर्मी से। सो सी वो जो है वो लोग सर्च करेंगे ना, बोलने से और करने से बहुत अलग है। तुम जाके आइडेंटिफाई करो, आप पूछो उनसे। ऐसे नहीं कि आप किसी पे ब्लेम कर दो, आप पहले देखो ना कौन क्या कर रहा है। सी रिजल्ट सबके पास है, पूरे देश को पता है कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। सो किस पे ब्लेम करना, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। आप देखो, आप खुद करो, उसके बाद बोलो ना। तो ये होना चाहिए। मेरे हिसाब से यही लगता है, जो इंसानियत को पहचान सके और दूसरे इंसान की जो काम आए, वही व्यक्ति बेहतर होगा। लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ इंसानियत को सपोर्ट करना चाहती हूँ। और इंसान को समझे, ये सबसे बड़ा वोटिंग होगा। इंसानियत किसमें दिखती है? मुझे इंसानियत है कि अगर किसी को जॉब की तकलीफ़ है, ज़िंदगी में कोई कश्मकश हो, अगर उसमें कोई किसी की मदद आ जाए तो और क्या कहना है। बीजेपी या कांग्रेस? It is too early to say something like that. It is too premature, I would say. लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। एजेंडा क्या होगा इस बार इलेक्शन में, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके हिसाब से मेन एजेंडा क्या होगा? किसको वोट डालेंगे? एजेंडा, ये तो मैंने अब तक सोचा नहीं, लेकिन आपने ये एक मुद्दा दे दिया है सोचने के लिए, इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। एज पर द लेटेस्ट ये जो डेवलपमेंट्स हुआ है, मेरे हिसाब से बीजेपी वुड बी द राइट पार्टी विच वुड विन। आई थिंक बीजेपी इज दी जो बोलते हैं ना कि यही राइट कैंडिडेट है बीजेपी का। बीजेपी इज द राइट। मोदी, राहुल क्यों नहीं? राहुल अभी तक बराबर बात नहीं कर सकते, तो वो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेंगे? देखिए, डेवलपमेंट्स तो वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। वी शुड गिव टाइम टू बीजेपी। इट्स नॉट दैट दे हैव नॉट डन एनीथिंग, दे आर ट्राइंग टू डू इट एंड दे नीड सम टाइम टू मेक डेवलपमेंट्स इन कंट्री एंड वी शुड गिव देम चांस। और इतने साल से जब कांग्रेस था, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। बीजेपी में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो आई थिंक वी शुड गिव देम टाइम। कांग्रेस एलिगेशन लगा रहा है मोदी पर कि उन्होंने राफेल डील में करप्शन किया है। करप्शन देखिए, कोई भी पार्टी हो वो करता ही है, ऐसा नहीं है। बट एट दी एंड देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच बीजेपी इज ऑल्सो डूइंग। सो कांग्रेस ने तो कुछ डेवलपमेंट किया नहीं है। करप्शन तो होते ही रहेगा और उसके ऊपर चार्जेस जो है अभी भी लग चुके हैं और उसके ऊपर अभी फाइनल हुआ नहीं है कि किसने किया है करप्शन। सो ये कोर्ट में केस चल रहा है। लेट देम टेक द डिसीजन एंड अकॉर्डिंग टू दैट वील सी इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस। नहीं, बिल्कुल नहीं। सी एवरीवन, इलेक्शन का मेन मुद्दा एक ही है कि डेवलपमेंट, जॉब्स, जो यहाँ पर अभी भी बहुत लोग अनएम्प्लॉयड है। सो मोदी जो हिसाब से बहुत सारे देशों के दौरे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि येस, ही विल गेट सम जॉब्स फॉर द पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज बीजेपी इज द परफेक्ट पार्टी। ही विल विन, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड ही डिजर्व्स टू विन। Modi. Now let us also have a look at the opinion polls. The Times Now VMR poll says that UPA, that is Congress NCP alliance, will get 9 seats, while NDA, that is Shiv Sena BJP alliance, will get 39 seats in the state. The News Nation survey says BJP will again get the majority of seats, that is 33 seats. The Congress NCP alliance will get only 15 seats. Still, it is a double digit. ABPC voter says that BJP will get 35 seats and Congress will get 13 seats. Now, Maharashtra will go for polling in 4 phases starting from 11 April. Now, we have to see, will Congress NCP rest the state or BJP Sena alliance will manage to keep the lead? Do let us know. Till then, stay tuned to HW News.